Hello, everyone. So, first and foremost thing I need to ask is that how's your preparation going on? I hope you have now geared yourself up for UPSC prelims that is scheduled in 2025. Application forms has come up, and I wish you all the best. And I need to remind that you still have time if you plan your preparation properly, if you schedule your reading list properly, if you're clear what you need to read and what you need not to read, let me tell you, you can still make through in UPSC list final list. So my name is Ruchi Singh. I am going to teach you current affairs and I will be covering current affairs from April 2024 to May 2025, and that will continue for mains examination as well and for the final stage, that is interview as well. So how the classes will run? Well, let me tell you that as well. So what we'll do is in 1 week there'll be 2 classes for current affairs. Okay. So for April, for every month, or let's say for April, there'll be 8 lectures for current affairs. So your entire current affairs for April month will be covered into 8 lectures. All right. So every month you'll have 8 lectures for that particular current affairs, for that particular month of the current affairs, and then from April to May till 2025 May, we will be continuing with the same exercise. So let us begin with the classes. And before I go ahead, below this video link, there is a link of Telegram channel that you can click and follow. That is channel of IS School by Vikas Ranjan sir. In that you can write the answer and submit it. Okay, and that will be checked by me and other faculties, other expert faculties. So you see, a lot of people say that now January is almost ending and we have to get into prelims mode completely. So now we cannot write answers anymore. I would recommend थोड़ा answers लिखते रहना current affairs के important topics पे, क्योंकि completely prelims mode में जाना थोड़ा सा मुझे तो लगता है ठीक है, but little bit of answer writing here and there will help in your preparation to much more effective in much more effective way. All right. So let us begin with the first topic, and I'll show you the topics that we are going to cover today. So in polity and governance, the topic that will be dealing, the first topic that will be dealing is fiscal federalism in India. All right. And then second topic will be role of civil servants in governance. In international relations topic, I will be taking up geopolitical significance of ports. So what are the important ports that are in news and that are important for India when we talk about geostrategic or geopolitical significance? And then the next topic will be instability in West Asia. So Asia has various names, just various, जो आप अगर आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो ये रीजन्स एक बार आप को समझना पड़ेगा. तो वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो देखना होगा. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि दिस रीजन वाज रिसेंटली इन न्यूज, तो आपको पूछ लेगा कि वो किससे रिलेटेड था, कहाँ पे है. तो थोड़ा सा मैप बेस्ड आंसर राइटिंग, मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स भी करने पड़ेंगे. देन इन इकोनॉमी सेक्शन, what are the, like there was in जब अप्रैल में आई यूज्ड टू टीच न्यूज़पेपर, तो उसमें काफी ज्यादा ये उस टाइम अप्रैल में न्यूज में था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला कि भाई ठीक है, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग वेरी हाई, but then there is huge wealth inequality in India. So reasons and analysis that we will see for the same. In the next topic in economy will be internationalization of rupee. So what are the benefits of internationalization of rupee? What is meaning of internationalization of rupee? What are the initiatives that has been taken by the government of India to, increase or to make Indian rupee internationalized? Okay, that we'll see. The last topic that we'll see in science and technologies, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर. तो यूपीएससी ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल in I guess previous year itself there was a question of use of technology in use of biotechnology in
हेल्थ केयर। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई probability of question being asked from this area, that is AI, how AI is helping in various sectors of the economy or various sectors of the nation, for example health, agriculture, space, etc and etc. So let us deal with each topic in detail and understand the relevance, followed by questions. So first topic that I told you is polity and governance, and that will be fiscal federalism. तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है कि भाई दिस इज द टॉपिक, ठीक है, उसके बाद आपको कैसे समझना है, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि न्यूज में क्यों था फिजिकल फेडरलिज्म, न्यूज में क्यों था, फिजिकल फेडरलिज्म में मीनिंग क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है। और आप देखो फिजिकल फेडरलिज्म वर्ड वर्ड ही दो, फिजिकल फेडरलिज्म। अब फिजिकल फेडरलिज्म में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फेडरलिज्म, ऑलराइट, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल, then what is fiscal federalism. So next thing that you need to understand is the meaning of the word, that is fiscal federalism, and then sources to be read. अच्छा, किस सिलेबस के किस पार्ट से आता है ये, तो ये बात देख लो कि सिलेबस में आपका जो जीएस पेपर 2 है, ठीक है, जनरल स्टडीज का पेपर 2 है मेंस का, उसका जो नाम है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें आपका एक टॉपिक है फंक्शंस and responsibilities of the union and states, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. ठीक है, तो कोई भी जब आप सब्जेक्ट में कोई जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ये ध्यान सोचो, एट द बैक ऑफ योर माइंड ये चलना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस के किस पार्ट से कनेक्टेड है, किस पार्ट से रेलेवेंस रखता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में दिस इज द टॉपिक दैट इज being asked by UPSC, and this current affairs topic will fit into this syllabus. What are the sources for this syllabus for this particular topic? See, सिर्फ इतना न्यूज में था। अच्छा, क्यों हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में, तो फिजिकल फेडरलिज्म सिर्फ क्यों इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए पढ़ना, तो न्यूज में था। देयर वर फ्यू स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, who raised voice, who reached Supreme Court, and they said that, these states said that the financial devolution or financial transfer that should come from center to these states has not been up to the mark, has not been up to the needed, limit. जितना होना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है due to various reasons. So this was in news, and because of this in news, this becomes the topic for the current affairs. And now this is the only aspect of current affairs. बाकी सारा आपका बेसिक्स है। तो बेसिक्स क्या है, बेसिक्स कहाँ से कवर करोगे, तो सोर्सेस क्या है, तो लक्ष्मीकांत, अगर आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ते हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे कवर करते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, तो लक्ष्मीकांत में आपका एक टॉपिक है फेडरल सिस्टम, दूसरा टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक, एक बार आप कंप्लीट समझ लोगे तो what are the meaning of what is the federal features, what is the unitary feature of the constitution, what is the critical evolution of federal system of India, and then center state relation, legislative relations, administrative relations, financial relations, and trends in center state relation. Trends in center state relation मतलब क्या है कि क्या जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ने कोई has come up with certain judicial pronouncement कि भाई, या कोई व्यूज आए हैं जुडिशरी की तरफ से सेंटर स्टेट रिलेशन में कि भाई दिस शुड बी द वे विच शुड डिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशंस और द फेडरल रिलेशन। ठीक है, तो या कोई स्टेट रीच्ड टू द जुडिशरी एंड आस्क्ड फॉर सर्टेन सोल्यूशन, तो क्या ऐसा कोई आया है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कुछ आया है, कोई कमेंट जुडिशरी की तरफ से आया है, तो या कोई कमीशन है जैसे पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ARC, कुछ ऐसा डेवलपमेंट है, तो ये सब आ जाएगा आपका ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये थोड़ा आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लेना। देन मस्ट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन में, योर एनसीईआरटी, आई बिलीव। तो एनसीईआरटी जरूर करो। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है फेडरलिज्म। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हाउ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यूनिक, कुछ लोग बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल है, तो उसका मतलब क्या है, ये सब आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप सोचो करंट अफेयर्स इस टॉपिक से, फिजिकल फेडरलिज्म से, करंट अफेयर्स सिर्फ एक लाइन का है कि फ्यू स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, and then yes, Kerala, Tamil Nadu, and other state I forgot. Yes, Kerala, Tamil Nadu, and
Karnataka, yes, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka, they reached to the Supreme Court and saying, voicing that as much as financial devolution they should get, they're not getting it. So judiciary should step in. So judiciary has stepped in and it stated few things that has defined interstate relations. सिर्फ इतना ही करंट अफेयर्स है, बाकी सब स्टैटिक पार्ट है. तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स मेन इंपॉर्टेंट चीज है. करंट अफेयर्स सिर्फ 10% ऑफ द प्रिपरेशन है, बाकी आपका सब कुछ बेसिक्स है. अगर आपके बेसिक्स अच्छे से हैं, प्रिपेयर्ड हैं, तो आप करंट अफेयर्स सिर्फ थोड़ा 10 to 15% ऐड कर लो एंड योर प्रिपरेशन इज complete. So do not run behind current affairs too much, but understand the current affairs, take the help of the current affairs, beautify your answer and get a very good rank in UPSC. That is only the objective of current affairs. Okay. So let us understand the basics of fiscal federalism. So first thing, what is federalism? Federalism is an institutional mechanism. सबसे पहले definition federalism की किसकी? Federalism. So what is federalism? So what is federalism? So federalism is kind of a type of a way of is an institutional mechanism. Institutional mechanism of what? Which divides, which tells about the two levels of inequality which shares the powers. तो क्या है ये? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, देयर आर टू पॉलिटीज. एक जिसको अगर जो सेंट्रल लेवल पे है या जो नेशनल लेवल पे है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. सो इस फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डिफाइन द शेयर ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन two levels of the polity, that is center and the state, which we also call as union government or the state government. अब फिस्कल फेडरलिज्म इसके आगे आप लगा दो फिस्कल फेडरलिज्म. तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म इज द शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स. जो ये सेटअप है शेयर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किस फेस में? एडमिनिस्ट्रेटिव, किस फेयर में? फाइनेंशियल. इन दोनों का जो शेयरिंग है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो भी इनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, सेटअप है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल फेडरलिज्म. ठीक है, so this is the understanding of fiscal federalism we have understood. Now let us go to the various other aspects of this. So there are three principles of fiscal federalism. अच्छा, ये करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म का, उसके पीछे का सारा बेसिक समझ रहे हैं जो कि आपके लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क उसमें दी हुई है. ठीक है, सो थ्री प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? फिस्कल इक्विवेलेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी. तो फिस्कल इक्विवेलेंसी क्या है? मतलब जुरिसडिक्शन फॉर ईच पब्लिक सर्विस. जो जुरिसडिक्शन एरिया है या जो डिफाइंड पावर है उसकी जो बाउंड्री है ना, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल इक्विवेलेंसी. और जो बेनिफिशियरी हैं, the beneficiary who are going to get benefited by the share of power and the completing this of responsibility is called as and the beneficiary should be included in such process. तो थ्री प्रिंसिपल है फिस्कल फेडरलिज्म के. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फिस्कल इक्विवेलेंसी, जिसमें बताया गया कि जो पब्लिक सर्विस की जुरिसडिक्शन है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और बेनिफिशियरी जो है इस प्रोसेस में, फेडरलिज्म के प्रोसेस में इंक्लूडेड होना चाहिए. सो फिस्कल इक्विवेलेंसी. सेकेंड इज डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम. डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम का मतलब क्या है? दो है. जो लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, द लोएस्ट लेवल गवर्नमेंट शुड हैव इक्वल or should if not let's not say equal, let's say clearly defined limit or clearly defined boundary. उसको पता होना चाहिए this is my sphere of influence, this is my sphere where I can exercise my powers. That should be clearly defined and effective management of cost and benefit. मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सेंटर तो सारे रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है बट स्टेट जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, स्टेट इज नॉट एबल टू गेट बेनिफिट. सिर्फ अपने कॉस्ट ही इनकर कर रहा है बट बेनिफिट्स उसको नहीं मिल रहा है. मतलब रेवेन्यू ज्यादा से सेंटर के पास चला जा रहा है, स्टेट के पास रेवेन्यू है ही नहीं एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए. सो देयर शुड बी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ
subsidiary आती है, मतलब functions at lowest level government and hierarchy of responsibility. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, ये लोएस्ट लेवल गवर्नमेंट से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. तो देयर इज 3 प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म: fiscal equivalency, decentralization theorem, and principle of subsidiary. This you need to understand. So first, the meaning of fiscal federalism. Second, the 3 principles of fiscal federalism. All right. Then constitutional framework. कुछ आपको articles याद करने पड़ेंगे. Some articles you cannot skip to miss. You have to remember. So what are these few articles? I have stated it. You can just go through your basic books when you're revising the articles, center-state relations. Just revise it once again and you'll be done. So Article 246, Article 269, Article 275, Article 291, 292 and 293 is very important. ठीक है? And also Article 280. Article 280 क्यों? Finance Commission दिया. Finance Commission, I've heard who appoints Finance Commission. It is appointed by President every 5 years. Or what is the role of this Finance Commission? It determines how resources are shared between union and state. So by Finance Commission under Article 280 is appointed by the President at the interval of 5 years, and it determines the how the resources will be shared between the center and state. So these are some of the articles that you need to understand. Article 292, 293 भी. 292 क्या है? The Union government can borrow money both within and outside India. बहुत important है. This article 292 and 293. तो Article 292 क्या कहता है? Article 292 says that the Union government, the central government can borrow money both from India and even from outside India. But Article 293 says that state government can borrow only within India and needs central consent for further borrowings if they are already indebted to the union. अगर उनको बाहर से बोरो करना है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए. दे हैव टू टेक कंसेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ दे नीड टू बोरो आउट फ्रॉम आउटसाइड, especially when they're indebted already to the central government. So Article 292, 293, Article 280 is very important when we read about center-state relations. So let us go further. So what are the various issues in center-state government? So इस topic में fiscal federalism के you have to understand what are the constitutional provisions which talks about center-state relations, which I just explained you. What is the meaning of fiscal federalism? What are the recent trends about the center-state relations? कोई judicial pronouncement आया है या कुछ judiciary ने comment किया है, that you need to understand. कोई commission आई है, that you need to read and understand. There are already 2 important commission. पुंछी commission है, सरकारी commission. ARC की report है, that you have to go through once. And we will cover that in our subsequent classes with other topics like Finance Commission के important topics हैं, हम cover करेंगे, उसमें हम वापस cover करेंगे. But just for understanding, another dimension that you need to understand about center-state relation is issues with center-state relation. तो क्या issues हैं? Borrowing limits. So states are restricted in particular limit that they can borrow. Who limits? Center limits. Next is limit set to 3% of the GSDP. तो जो gross state domestic product है, जितना है उसका only 3% ही states can borrow. This is the limit that you need to remember. So borrowing limit कितना है? First borrowing limit restriction है. क्या है? 3% of the state जो GDP है उसका 3% ही borrow कर सकता है. And also reform. The borrowing जो limit है, state कितना borrow कर सकता है, that is tied to reform implementation. Reform मतलब भाई, this is the reforms, like कोई social reform है, कोई economic reforms है, that center expects you to bring. If you bring that reform, then you will be incentivized enough maybe. So the borrowing limit is also tied with the reform implementation. For example, जैसे मैंने बताया कि कोई social reform है, कोई political, कोई economic reforms है, which center expect the state to implement. If that is implemented, maybe your limit of borrowing can be increased. So first is borrowing limit in center-state relations. And obviously, it is a limitation of center-state relation, ना? क्योंकि this will irritate. अगर मुझे borrow करना, I need money, I need funds to, complete some of my responsibilities, to, deliver some of my responsibility that is being expected from me. I will need fund, and I'm going to raise
money for that, and if I'm being limited by someone, obviously it is an irritant in center state relations. ठीक है. Then second is vertical fiscal imbalance. मतलब यूनियन गवर्नमेंट की जो टैक्स पावर्स है, अब टैक्सेशन जो टैक्स पावर्स है भाई, यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, स्टेट कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करता है, स्टेट की क्या क्या रेवेन्यू सोर्स है, यूनियन के क्या क्या रेवेन्यू सोर्स है, आपको थोड़ा सा यू हैव टू गो थ्रू, एंड दिस इज जस्ट बेसिक्स. एनी बुक दैट यू आर रेफरिंग, जस्ट रिवाइज दैट फिजिकल रिलेशंस, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस आप जो पढ़ते हो, उसमें फाइनेंशियल रिलेशंस आप देख लेना कैसे कैसे टैक्सेशन पावर्स डिफाइन की गई हैं. ठीक है. सो vertical fiscal imbalance है, मतलब union government has more sources for revenue whereas state government has less. On the contrary, also state government has to fulfill more responsibilities, so it's kind of, there is a vertical imbalance. Development expenditure. So what happens is RBI जो budgetary expenditure होता है आपका, so understand this. So जो आपका budgetary expenditure है, okay, जो आपका बजटरी एक्सपेंडिचर है, RBI has divided into two: developmental expenditure and non-development expenditure. Non-development expenditure मतलब कौन से, जैसे pensions है, salaries है, allowances है, all these will come under non-development expenditure. Developmental expenditure जो है, that is more in, जैसे अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, अगर कोई सर्विसेज है, सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज है, मनरेगा है, ठीक है, या इन सब पे जो खर्चे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दैट इज मोर इन द शेयर ऑफ स्टेट्स. मतलब एक तो स्टेट्स के पास रेवेन्यू का जो सोर्स है कंपैरिजन टू सेंटर वो कम है, ऑल्सो दे हैव टू इनकर मोर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन अमंग दी स्टेट्स कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है हमारे पास और रिसोर्सेज हमारे पास कम है. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू इरिटेट, दिस इज गोइंग टू बिकम एन इरिटेंट इन सेंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स. मतलब it has been seen that in previous few years there has been decline in tax transfers for some states, जो कि बोला अभी बोला, ठीक है. इवन केरला एंड तमिलनाडु ने भी बोला है कि भाई हमको अब टैक्स का ट्रांसफर बहुत कम हो गया. सो इट्स काइंड ऑफ इरिटेंट फॉर देम एंड दे आर, lot of states has said that, and it is documented, it is data भी यही बोलती है कि भाई ठीक है, in recent few years the devolution or the financial transfers to the states has decreased. Next is 15th Finance Commission. 15th Finance Commission has certain basis based on which it has recommended financial transfer to states. तो क्या है, पॉपुलेशन, एरिया, इनकम, डिस्टेंस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फॉरेस्ट एरिया. जब मैंने अप्रैल का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया था, 15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे हमने वो भी डिस्कस किया था. In some fine day, in some other article where we are discussing Finance Commission, we will be discussing about 16th Finance Commission and 15th Finance Commission. ठीक है. And what are the areas, what are the basis based on which Finance Commission has recommended the financial, transfers from the center to the states. तो जैसे कुछ बेसिस है, पॉपुलेशन, एरिया, ऑल दिस थिंग. तो बेस्ड ऑन दीज ट्रांसफर्स सम ऑफ द स्टेट्स आर ऑन लूजिंग साइड. जैसे पॉपुलेशन अगर कंट्रोल कर लिया तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. ट्रांसफर अब पॉपुलेशन, मान लो केरला ने बोला ठीक है, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन certain policy based on which the population will be controlled. अब उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या हुआ, उनको फिजिकल ट्रांसफर भी कम हो गए. दूसरा एरिया बड़ा छोटा कितना है उसके हिसाब से भी उनको फिजिकल ट्रांसफर मिल रहा है. तो ये तो प्यूनिटी हो गया ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल हमने किया, विच इज एक्सपेक्टेड. नाउ वी आर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, ऑन द अदर साइड वी आर लूजिंग ऑन दी शेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांसफर. सो दिस इज ऑल्सो एन इरिटेंट इन intergovernmental fiscal transfer is also irritant in the center state relations. तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि अप्लाई दी 16 फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशन. जैसे स्पेसिफिक इश्यूज को और कंसिडरेशन को, जैसे पॉपुलेशन, आप एरिया, जो क्लाइमेट चेंज है, माइग्रेशन है, डेमोग्राफिक चेंजेस है, इनको ध्यान में रखते हुए फिजिकल ट्रांसफर करिए. मतलब बी फ्लेक्सिबल इन फिजिकल ट्रांसफर्स. सेंटर हैज टू फॉलो ऑल दिस
basis as well, which has been recommended by 16th Finance Commission for the fiscal transfer. So if 15th Finance Commission के जो उन्होंने basis लिए थे उसकी वजह से अगर कुछ कुछ चीजें states are losing, तो 16th Finance Commission has given a solution for it. So आप way forward में recommendation of 16th Finance Commission लिख सकते हो. Then review of budget borrowings, जैसे practices not included in budgets create payment liabilities. मतलब जो off borrowing budget है, off budget borrowing है, budget के बाहर जाकर के भी जैसे लिमिट्स जो रखी हैं सेंटर ने स्टेट पे कि इतना बोरो कर सकते हो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लोगे उसके बेसिस पे, तो सेंटर हैज टू वंस अगेन रीलुक ऑन इट. हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस है. हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस मतलब इवन अलग अलग स्टेट्स में भी, जैसे हॉरिजॉन्टल क्या, वर्टिकल क्या, फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, हॉरिजॉन्टल क्या, स्टेट टू स्टेट, मतलब वेरियस अलग अलग स्टेट्स को भी अलग अलग आप अलग अलग बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ब्रिंग सम हॉरिजॉन्टल बैलेंसेस. देन गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल सफिशिएंसी. सेंटर एंड स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं कि स्टेट को भीख मांगना पड़े सेंटर से कि हमें पैसे दीजिए तब मैं कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या कुछ सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल मैं कुछ एक्टिविटीज और इनिशिएटिव स्टार्ट करूं, तो भीख ना मांगना पड़े स्टेट को. कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाए जिससे स्टेट और सेंटर दोनों इंडिपेंडेंट हो. ठीक है. देन yes, next is financial sufficiency. Sufficient funds for expenses has to be available to the states as well. So this is a way forward, and now you can practice a question. So this is a question: discuss the need and ways for redefining the fiscal architecture of India to strengthen the fiscal federalism. 250 words, 15 marker. So this is a question that you can practice, and you get the Telegram channel link of the institute. You can scan that Telegram channel link, or you can click on the Telegram channel link and you can join the group. You can write this answer and get this answer evaluated free of cost. You know, I'll be checking the answer, so you can understand how to write answers as well. और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. So with this, let us go to the second topic, role of civil services in India. तो सिविल सर्विसेज कौन होते हैं? सबसे पहले सिविल सर्विसेज है कौन ये समझो. तो सिविल सर्विस आर परमानेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, और इन द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस जो होते हैं, एमपीज एमएलएस, दे आर नॉन परमानेंट members of the executive wing of the government. Permanent कौन है? Civil services, civil servants. So civil servants are the permanent officials in the executive wing of the government. That one thing that you have to understand. अच्छा, ये topic किस चैप्टर, किस आपके सिलेबस से रेफरेंस करते हैं? मैंने हमेशा बोला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किस सिलेबस से है. ठीक है. अच्छा, न्यूज में क्यों था सिविल सर्विसेज? तो सिविल रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द गवर्नेंस क्यों न्यूज में था? सिविल सर्विसेज डे मनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्पीच दी थी, उसकी वजह से सिविल सर्विसेज डे वाज इन न्यूज, एंड इसलिए सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन गवर्नेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो सिलेबस के किस पार्ट में सिविल सर्विसेज? पेपर 2. तो सीधा सीधा लाइन लिखा हुआ है पेपर 2 में आपके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द गवर्नेंस, दैट यू हैव टू रीड. चलो, तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है? रोल ऑफ सिविल, सबसे पहले ब्रीफ में सिर्फ इतना जान लो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है. सिंपली, थैंक यू, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प करते हैं. जितना आप आईपीएस, आईएएस, आईआरएस इन सब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में सोच लो और आंसर लिख डालो. तो कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जितना ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल जो इनपुट्स होता है जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट में, तो वो कहाँ से आती है? कौन देता है? तो यही तो देता है ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो प्रमोट हो गए जाते हैं जब, तो वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से अटैच रहते हैं. तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है तो इनसे इनपुट लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज. जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होकर आती है तो जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? इम्प्लीमेंट वो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओवरकमिंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तो भाई एक डीएम हो आप, ठीक है, मान लो डिजास्टर, कोई डिजास्टर आ गया स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर क्या है, कैसे, अगर मान लो फाइनेंशियल तुरंत फाइनेंसेस की जरूरत है या कोई कुछ रिसोर्स क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग मैनेज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर लेता है. क्वाज़ी जुडिशियल रोल, क्वाज़ी जुडिशियल हो गया तो जुडिशियल फंक्शंस. तो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स का क्या है? क्वाज़ी जुडिशियल रोल भी होता है उनका, ठीक है. सो सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट role of civil servant is
सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी कैसे? इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? इलेक्शन कमिश्नर भी क्या है? दे आर सिविल सर्वेंट्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स क्या करते हैं? दे हेल्प कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दे हेल्प इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, जब भी ये वर्ड लिखना हो आप रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स में, तो आप रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स का याद कर लो और सारे लिख डालो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, एंड द सिविल सर्वेंट्स आर गिविंग इनपुट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जो लोग हैं, लोगों तक बातें पहुंचाता कौन है? लोगों तक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्रिज कौन बनता है बिटवीन दी गवर्नमेंट और द इलेक्टेड पीपल इन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, जो हम लोग जो इलेक्ट करके लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को हम गवर्नमेंट में भेजते हैं, लोग उनसे और हमारे बीच का जो ब्रिज कौन होता है? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आपको यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर 2 में, ये है। सो all these things we have discussed. Now some of the constitutional provisions of the civil services. So article 310, article 311, article 312 of Indian constitution, go back to your Indian polity book और बेयर एक्ट जो भी आप पढ़ते हो वहां से एक बार आप ये पढ़ लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। दिस 3 आर्टिकल्स यू मस्ट रिमेंबर। एंड देन इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो एकदम बहुत एशियन हिस्ट्री में चले जाओ तो वन ऑफ द मोस्ट thriving civil service system in was developed by Mauryans, ठीक है, back in ancient India, and it is on the world level. तो जो civil services थी Mauryan administration की, Mauryan government की, that was most robust and that was most, magnificent in the entire world. And then comes Mughals. Mughals mein, when we talk about the civil services and administrative wing of the Akbar, that is also, needs a specific mention and needs a applaud. And then comes the era of ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म्स किए थे ना। The purpose that can be debated why they brought it, but yes, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम रोल बात करें गवर्नर्स की, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, and then Wellesley, all these people made important contribution in the development of civil services in India. तो EIC की post independence में नेहरू, सरदार पटेल जी, all these they played an important role in development of civil services in India. तो evolution of civil services in India, थोड़ा सा brief review you have to look. उसके बाद सिलेबस का मैंने बता ही दिया कि कहाँ पे आता है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, पेपर 2 में मेंशन्ड है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है जो सिविल सर्वेंट्स यूज करते हैं? ऑब्वियसली इंटरफेरेंस है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स है, रेड टेपिज्म है, एंड दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट्स। तो इनिशिएटिव्स क्या क्या है? मिशन कर्मयोगी। तो सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स में क्या, सिविल सर्विस का इवोल्यूशन क्या रहा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज रिलेटेड टू सिविल सर्विस, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है? मिशन कर्मयोगी, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड देन आरंभ भी है, इंपॉर्टेंट कॉमन फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग, देन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। these are some of the initiatives, challenges and the role of civil servants that you needed to read. तो आप सोचो करंट अफेयर सिर्फ 5% था, सिर्फ 5%, ठीक है। लेट मी एम्फसाइज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड डेप्थ। किस डेप्थ तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू लुक। आप देखो, हमने 2 आर्टिकल्स अभी तक कवर किए, फिस्कल फेडरलिज्म एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। फिस्कल फेडरलिज्म पूरा हमने सिर्फ 2 मिनट की बात मैंने की कि व्हाई फिस्कल फेडरलिज्म एज अ टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज द बैकग्राउंड। न्यूज में क्या आता है भाई? स्टेट, कौन से स्टेट्स? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दे अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड दे सेड भाई उनको जो फिस्कल फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है
उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फुलफिल their रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, दिस वॉज हार्डली द करंट अफेयर्स दैट वॉज इन न्यूज. बाकी हमने जितना डिस्कस किया बेसिक्स तो हमने डिस्कस किया पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, दैट टू लक्ष्मीकांत. एनसीईआरटी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है. अगर आपको सेंटर स्टेट रिलेशन लक्ष्मीकांत से, अगर आप लक्ष्मीकांत रेफर करते हो, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं रेफरेंस दे रही हूँ. उसके बाद आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. आप ये दोनों पढ़ लो. ठीक है, आप ये दोनों पढ़ लो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो मैंने पूरा बेसिक्स तो पढ़ा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का. सेकंड आर्टिकल की बात मैं करूं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज. न्यूज क्या था, करंट अफेयर्स क्या था, सिर्फ इतना था. सिविल सर्विसेज डे मनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच, दिस वाज द करंट अफेयर्स, दिस इज फिनिश्ड. Now everything that I discussed, who are the civil servants, what are the roles of civil servants in Indian democracy or in the governance, and then what are the challenges faced by civil servants, and then what are the initiatives taken by the government for the smooth functioning of civil servants in India. तो ये क्या था, ये तो पूरा बेसिक्स है ना. तो इसका मतलब क्यों करंट अफेयर्स के पीछे इतना भाग रहे हैं और इतनी मोटे मोटे बुकलेट्स हम पढ़ रहे हैं कि पूरा पूरा इतनी हम उठा लिए मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स, दे आर वंडरफुल, बट द थिंग इज दैट आप कितना याद कर पाओगे. मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हो आप, तो करंट अफेयर्स के पीछे भागना बंद करो. ठीक है, करंट अफेयर्स सिर्फ 10 to 20% पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन है. आप अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, किससे एनसीईआरटी को पहला प्रेफरेंस दें. उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ लें, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है. डू नॉट रन बिहाइंड करंट अफेयर्स टू मच. जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स, finish it with any compilation available. Be selective in reading, and your current affairs preparation aspect of the preparation for UPSC civil service is finished. All right, so let us see some of the questions that has been asked by UPSC. तो this area is important. UPSC question पूछता है यहाँ से. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. कमेंट. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले से ही पूछा हुआ है. ठीक है, सो सिविल सर्विस इन इंडिया वर डिजाइन्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस व्हिच सीम्स टू बी लैकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. डू यू अग्री विद व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज? तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड्स योर अटेंशन. तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बारे में एक बार पढ़ना. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीएससी. नाउ जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट आंसर, write this answer in 150 words. Explain the role of civil services in democracy like India. So, role of civil services in democracy like India, first part of the question. Second part of the question, why is it argued that civil services need reforms to keep pace with current realities? तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है? आप लिखो, जो एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है, दैट हैज टू ऑफिशियल्स, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट. अब इंट्रोडक्शन की बात करें, परमानेंट आर योर सिविल सर्वेंट. ठीक है, उसके बाद जो हमने पूरा रोल पार्ट में पूरा डिस्कस किया. ठीक है, आप वो पूरा डिस्कस कर दो. दिस पार्ट भी ऑलरेडी डिस्कस. सो इन मेन बॉडी, तो अगर 150 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सो यू हैव टू राइट 20 to 25 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 20 to 25 वर्ड्स ऑफ कंक्लूजन, देन 80 to 100 वर्ड्स आपका आ जाएगा मेन बॉडी. तो 20-25 वर्ड्स में आप इंट्रोड्यूस कर लो, जैसा मैंने बताया. मेन बॉडी में आप रोल लिखो, एंड देन कम टू सर्टेन, आप लिखो यस, विथ चेंजिंग टाइम्स and the requirement of the governance and the needs of the society and the polity in Indian governance, we do look for the civil service reforms in India. अब क्या क्या reforms is required आप mention करते हुए आप कुछ commissions के administrative reform commission का आप recommendation लिख दो and then simply conclude. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर complete कर सकते हो and your question gets finished and one part of the important syllabus of the paper 2 gets completed, that is role of civil services in India and fiscal federalism. जो सेटअप है इंडिया का उसका, तो हमने पेपर 2 से दो सिलेबस से 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर लिए, फिस्कल फेडरलिज्म एंड रोल ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया. विद दिस डिस्कशन let's move to now the topic that is port diplomacy. ठीक है, पोर्ट डिप्लोमेसी, कौन कौन सी पोर्ट्स न्यूज में है. अच्छा, न्यूज में क्या था सबसे पहले ये जानने की जरूरत है न्यूज में क्या था. ठीक है, तो न्यूज में क्या था, शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल.
चाहबार पोर्ट का शहीद बहस्ती जो पोर्ट टर्मिनल था, दैट वाज इन न्यूज क्या थी कि इंडिया ने 10-year एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट टर्मिनल। सिंपली दिस वाज इन न्यूज, ठीक है। तो इसी वजह से पोर्ट डिप्लोमेसी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोर्ट डिप्लोमेसी है क्या, कौन कौन से पोर्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझो। तो बताओ कुछ पोर्ट्स के नाम बताओ जो न्यूज में है, या कुछ भी जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहब और ईरान से कोई भी पोर्ट्स बताओ, 2-4 पोर्ट्स के नाम जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। हम्म हम्म Online students as well. I was not interacting till now because I have to finish. ठीक है, पूरी इसको खत्म करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे का करंट अफेयर्स एक हफ्ते में 2 बार चाहिए क्लास, मुझे 3 घंटे की। बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट फर्दर। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी फिनिश हो आपका, ठीक है। तो बताओ, यस सितवे पोर्ट, ठीक है, सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और बताओ कालादान के बारे में बता दो, कालादान मल्टी मॉडल प्रोडक्ट, वो भी तो बता दो, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चाहबार पोर्ट न्यूज में है, चाहबार पोर्ट का एक शहीद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल है, न्यूज में है, ठीक है, गुड। सितवे पोर्ट न्यूज, सितवे पोर्ट कहाँ, सितवे कहाँ पे है, सितवे पोर्ट, हाँ वेरी गुड, करेक्ट, म्यांमार। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ते हैं। तो ठीक है, entire Sittwe port, Myanmar, Kaladan River. The port is located in Kaladan River and is component of Kaladan multimodal transit. तो KMTTP, KMTTP अप्रैल में इतना ज्यादा ये न्यूज में था, मैंने बहुत याद है मुझे, मैंने इसको कम से कम आधे घंटे न्यूज़पेपर की क्लास में डिस्कस किया था। दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, दैट यूज्ड टू बी लाइव, स्टूडेंट्स रहते थे, फ्री था यूट्यूब पे ऑन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट पोर्टल। तो वहां पे पढ़ाती थी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। से तो ये काफी न्यूज था, मुझे याद है मैंने पूरा आधा घंटा कवर किया था इसको, ठीक है। तो KMTTP इज इंपॉर्टेंट। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आप ये देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे, आप ये न्यूज है, चाहबार पोर्ट का ये मैप है, ठीक है। चाहबार पोर्ट का मैप देखो, ग्वादार पोर्ट से चाहबार पोर्ट बहुत पास कहाँ पे है, ग्वादार पोर्ट। ग्वादार पोर्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने चाहबार पोर्ट जो डेवलपमेंट का इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, हमने ग्वादार पोर्ट पे किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना का है, दैट इज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ग्वादार पोर्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जस्ट पास में ईरान से एग्रीमेंट करते हैं और चाहबार पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज वाई। तो ग्वादार पोर्ट इंपॉर्टेंट, चाहबार पोर्ट इंपॉर्टेंट, चाहबार का ही जो ये शहीद बहश्ती पोर्ट टर्मिनल है, दैट इज पार्ट ऑफ द चाहबार पोर्ट itself, ठीक है। सो यू रीड देन जहेदान, जरान, दिलाराम, अफगानिस्तान। तो this particular Chahabar port gives India access to the various Asian countries, that is from Iran and reaching to Afghanistan, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी हमें एक्सेस देता है। So this is important. And then another कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTTP, ठीक है। तो आप देखो कालादान के बारे में थोड़ा पढ़ो, तो कहां से कहां तक हमको हेल्प करता है। सो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पोर्ट्स, अगर दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, इफ यू, सो दिस इज रफ मैप, जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, ईस्टर्न पोर्ट क्या हुआ, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, ये तो बोलते तो नहीं हो ना, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट। तो जो KMMTTP है, दैट हेल्प्स अस वाइजाग एंड कोलकाता टू म्यांमार, ठीक है। तो ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो वाइजाग एंड कोलकाता टू म्यांमार एज वेल एज टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू म्यांमार बाईपासिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्टर्न, ये देखो आप, नॉर्थ ईस्टर्न अपने पोर्ट्स हैं, वहां से बांग्लादेश से कनेक्ट करते हुए म्यांमार तक हमको एक्सेस देता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कालादान मल्टी मॉडल transit transport, ठीक है। So this much it aims to reduce dependency on the Siliguri corridor known as the chicken snack. अच्छा, chicken snack मल्टी जो ये KMMTTP है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, KMMTTP का सिग्निफिकेंस ये है कि this helps us to reduce the dependency on the सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज स्क्वीज बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन चिकन स्नैक, दैट इज सिलीगुड़ी। अब
ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, प्लीज लुक एट दिस इमेज. तो इंडियन प्रेजेंस ऑरेंज से मार्क्ड है, ब्लूइश पर्पलिश प्रेजेंस चाइनीज प्रेजेंस से मार्क्ड है. लुक एट द इमेज एंड अंडरस्टैंड वेरियस पोर्ट्स. जैसा मैंने पहले बताया, गदर पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है. ऑरेंज में जितने सारे इंडियन प्रेजेंस है. चाहबार पोर्ट ईरान में, जिसको डिस्कस किया, दक्कम, ठीक है. नाउ सितवे पोर्ट म्यांमार. अब ब्लूइश प्रेजेंस देखो. सो क्योफू पोर्ट देखो आप, म्यांमार के नीचे ऑफ क्योफू पोर्ट है. हम्बनटोटो पोर्ट श्रीलंका में. पोर्ट ऑफ दोरले आप जिबूती के पास है. आप अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका आप देखो तो जिबूती के पास पोर्ट ऑफ दोरले है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज. तो आप पोर्ट का सिग्निफिकेंस देखो. पोर्ट्स क्या करते हैं? Ports are important, places which facilitates us for the movements of goods and the people and then services as well. तो अब समझते हैं पोर्ट डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है. So ports are increasingly important as not just economic assets but also strategic tools of geopolitics. तो strategic tools की तरह काम करते हैं. तो ports are maritime security by improving countries' capability for maritime domain awareness through presence in the Indian Ocean region. ठीक है. Most importantly, we are focusing on Indian Ocean regions and China versus India's sphere of influence in ports. ठीक है. Then port diplomacy. Port diplomacy है क्या? Using the ports, China as well as India is trying to outreach various nations, especially the neighbors, and increase its sphere of influence in the Indian Ocean region as well as in the economic spheres with the neighboring countries. जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ऑल दीज. ठीक है. सो दिस इज एंड फॉर एग्जाम्पल चाहबार पोर्ट, द रिसेंट वन. चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या क्या हैं? बहुत सारे राइवलरी अमंग नेशंस में, मतलब श्रीलंका ने हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया, चलो ठीक है बना लो, फिर बाद में चाइना को भी इन्फ्लुएंस दे दिया. सितवे पोर्ट म्यांमार में है, फिर सितवे पोर्ट के नीचे दूसरा पोर्ट चाइना का इन्फ्लुएंस है. तो राइवलरी इतनी ज्यादा है. आज बायलैटरल रिलेशंस हमारे एक कंट्री से ठीक है, फिर कल खराब है तो ठीक है, दूसरी राइवल कंट्री को बुला लिया, ठीक है, पोर्ट्स डेवलप करने के लिए. लॉस ऑफ सोवरेनिटी, लोग कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स एग्जाम्पल, जैसे राइवल नेशंस कंट्रोल चाइना's डेट ट्रैप इम्प्लीमेंट से. चाइना क्या करता है? इतना लो पैसा एंड पोर्ट डेवलप करो. अब स्टेट जो था, वो नेशन जो था, दैट वाज टू वीक और मे बी इट वेंट थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, इट फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, नाउ इट इज नॉट एबल टू पे बैक चाइना. तो क्या हुआ? अब वो पर्टिकुलर नेशन डेट में है. हुज डेट? चाइना's डेट. चाइना के डेट, दे आर इंडेटेड टू चाइना नाउ. तो चाइना जो कहेगा उनको करना पड़ेगा. अभी हम्बन टोटा चलो बोला कि इंडिया आप डेवलप करो, आप वी विल गिव यू द एक्सेस, बट श्रीलंका को दूसरा कुछ पोर्ट डेवलप करने के चाइना ने हेल्प, पैसे कर दिया, पैसा वापस श्रीलंका नहीं कर रहा है. तो श्रीलंका ने बोला ठीक है चाइना आप भी आइए, आप भी आप पोर्ट इस्तेमाल करें. तो क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हो गया ना, क्लैशेस हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया. तो चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज ऑल्सो अनदर explanation when we talk about loss of sovereignty. अंदर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स भी है, पायरेसी, फॉरेन ओनरशिप, क्योंकि फॉरेन ओनरशिप है ना, डेवलप हमने किया, पैसे हमने लगाए. एक प्रॉब्लम तो पायरेसी है, दूसरा फॉरेन नेशन हमारी डेवलप की हुई ज्योग्राफिकल एरिया को, ठीक है, दैट इज ओन्ड बाय अनदर नेशन. तो कितना ही यूज कर पाएंगे. ठीक है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल्स, मैनिपुलेशन ऑफ चोक पॉइंट्स. अगर आपको याद होगा, काफी न्यूज में था, रेड सी पे हाउथीज ने अटैक किया था. तो जो रेड सी रीजन था, वहां से बहुत सारा ट्रांजिट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, पीपल का, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. रेड सी जो कॉरिडोर है, रेड सी एरिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल पास थ्रू दैट चैनल. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हाउथीज ने अटैक कर दिया ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन द रीजन. अब रेड सी वाज क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है. तो उससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट चैनल डिस्टर्ब हुआ ना. तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट द पोर्ट डिप्लोमेसी. तो वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया शुड एक्सप्लोर मल्टीलैटरल पार्टनर्स लाइक माइंडेड कंट्रीज. क्वाड, जैसे क्वाड है, तो अगर पोर्ट्स का बेटर डेवलपमेंट करना है, यूज करना है, तो मल्टीलैटरल रिलेशंस पे फोकस करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इज क्वाड. Then there is a need for monitoring risks such as irresponsible lending and misuse of commercial arrangements at host country ports to support military functions. मतलब जो आप पैसे दे रहे हो डेवलप करने के लिए, उसको प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, कितने बेनिफिट्स है, कितना नुकसान है.
India should, as this we read, India should also establish a stronger presence in Western Indian Ocean region. So this is about port diplomacy and other topics that we will be taking up from this handout. We'll discuss in another class. I'll see you in another session, another Power Pack session. This particular handout will be attached with the video itself. There'll be a link. You can download this handout, read, and I will see you next session with other topics that are due to be discussed from this handout. All the best. I'll see you. Bye bye.